Assalamu alaikum class. Hopefully you're doing fine. We are starting our new session on further topics related to sustainable um, practices related to business practice related to environmental sustainability. And we're focusing on aspects which are related to the practical world, are real-time intriguing issues which are concerning larger, bigger corporates. From this perspective, as you have seen in the previous handouts as well, there is a sort of a consensus where one of the major area related to corporate environmental sustainability concerns with the supply chain activities and definitely becoming a focus for people who are managing the supply chain, the larger, bigger corporates. So our next topic, which is module 4, is related to sustainable supply chain management and procurement of goods, which is one of the key aspects of handling the material, the raw material. And we'll be focusing on multiple aspects related to the supply chain management, often called the green supply chain management, but very popularly called the SSCM, which is sustainable supply chain management. So we're focusing on finding practical aspects, sustainability within a business setup. So we're looking at sustainability at work or workplace, and we're looking at operational integration of sustainability. आइडिया ये है कि हम सस्टेनेबिलिटी की जर्नल डिबेट्स को अब हम जर्नल डिबेट्स की बजाय कि उनको फिनिश करने के बाद स्पेसिफिक बिजनेस ऑपरेशंस के साथ चीज़ों को देख सकें। तो आप देख रहे हैं कि ग्रीन मैन्युफैक्चरिंग, green marketing, green HRM, all are operational aspects of the sustainability. सारी sustainability की efforts हैं to evaluate whether our business operations are carried out uh, in connection or integrated with the environmental concerns. इसलिए आज से sustainable and green supply chain management is one of the aspects or one of the most important aspects regarded as one of the key pillars of corporate environmental sustainability. अगर आप थोड़ा सा भी ओरिएंटेशन रखते हो सप्लाई चेन के हवाले से तो आप देख रहे हैं कि उसमें की स्टेक होल्डर्स जो कि ऑर्गेनाइजेशन के स्पेसिफिक एनवायरनमेंट से आए हुए हैं उनसे ऑर्गेनाइजेशन की रिलेशनशिप और कनेक्टिविटी कंसर्न नजर आती है सप्लाई चेन में टॉकिंग अबाउट सप्लायर्स distributors, retailers, and consumers if you are a manufacturer yourself. Our supply chain therefore integrates operations activities with all of these key stakeholders, companies, or uh, internal and external, especially external entities in your task environment or in specific environment. And then if you could see आप चेक करें कि इसके अंदर की सप्लाई चेन की नजर आ रही है हमें लॉजिस्टिक्स नजर आ रही है शिपमेंट ऑफ गुड्स फ्रॉम मैन्युफैक्चरर टू डिस्ट्रीब्यूटर फ्रॉम सप्लायर टू मैन्युफैक्चरर देन फ्रॉम रिटेलर टू कंज्यूमर हमें नजर आ रही है कि शिपमेंट नजर आ रही है गुड्स इसके अलावा हम ये देख रहे हैं कि हमारी जो डिमांड एंड सप्लाई है द रॉ मटेरियल ऑफ द गुड्स उनकी वाले से भी की कंसर्न्स नजर आ रही हैं और रॉ मटेरियल और मटेरियल मैनेजमेंट वेयर हाउसिंग इस तरह के एस्पेक्ट्स भी हमें यहाँ नजर आ रहे हैं ऑफ कोर्स मैन्युफैक्चरिंग इज आल्सो कंसर्न बट सप्लाई चेन मैनेजमेंट मोस्ट रिलेट्स टू द
activities or processes that facilitate the manufacturing of the goods through the procurement of raw material, but also related to so we are concerned about sustainability, that is the concern related to resource usage or recycling or um, the reduction of waste and waste management. But particularly, we are looking at the supply chain activities in this particular module, and then looking at strategically, operationally, tactfully ways how companies be able to achieve sustainable goals or sustainability goals in the light of the guidelines provided by government, but also by the world standards that are facilitating this. So the as the picture reflects, people who are related to supply chain, most probably supply chain managers, executives, or directors, they be continuously um, tracing or are taking care of the supply chain environmental concerns. They be looking forward to any issues, any harm during the supply chain will be caused through their activities or actions. They definitely will be constantly monitoring their supply chains for any environmental concerns or issues that may rise. Now, at this moment, this is interesting and important to understand that the uh, supply chain most likely for larger, bigger corporates like Nestle, Unilever, and other companies, they most probably are operating across the globe. That is, their operations are mostly related to managing their supply lines across the globe. So we're looking at concerns, environmental concerns in the global supply chain. And we're looking at distribution, shipment of goods in the global level. So that's why some of the major ट्रांजिट हब्स आपने देखा होगा, जैसे कि सिंगापुर ट्रांजिट हब है, दुबई इस ट्रांजिट हब है, वहां पर सीरियस कंसर्न्स पाई जाती हैं एनवायरमेंटल इश्यूज के हवाले से, बिकॉज पूरे दुनिया के कंपनीज जो हैं उनकी शिपमेंट्स घूम रही होती हैं. इनफैक्ट these issues are not related to physical world um, transportations through water and through sea, but most probably related to airline agencies as well, because most of the cargo is shipped through the airlines as well. So इसके अंदर हमें सिर्फ कंपनीज नजर नहीं आ रही, इसके अंदर हमें सिर्फ कंज्यूमर नजर नहीं आ रहे, डिस्ट्रीब्यूटर और सप्लायर नजर नहीं आ रहे. बट अगर हम इसकी पिक्चर को अगर केयरफुली कंप्रिहेंसिवली देखें तो इसमें गवर्नमेंट्स भी इन्वॉल्व नजर आ रही हैं, यानी सीरियसली गवर्नमेंट कंसर्न है. ये उनके कंट्री में जो प्रैक्टिसेस हो रही हैं ग्लोबल सप्लाई चेन की, वो सेफर हो, इन्वायरमेंटली फ्रेंडली हो, ये कंसर्न है उनकी. इस लिहाज से में कुछ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस भी इंपॉर्टेंटली नजर आ रही हैं, जो कि
इन एक्टिविटीज को गाइडलाइन दें, इनके हवाले से कुछ इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स भी सामने आए। तो इस लिहाज से जो ग्लोबल सप्लाई चेन्स हैं, दे आर ऑफ कोर्स अ प्रोफाउंड फोकस इन द कॉर्पोरेट एनवायरमेंटल वर्ल्ड। जब हम इस मॉड्यूल में जा रहे हैं विच इज SSCM, तो फिर हमारे जहन में सवाल आएगा, हाउ वी शुड अप्रोच सप्लाई चेन मैनेजमेंट फ्रॉम द सस्टेनेबिलिटी पर्सपेक्टिव, कैसे करना चाहिए। So I was luckily able to find this particular framework, a model which is very comprehensive, very complex in many ways है, लेकिन मैं कोशिश कर रहा हूँ कि उसमें से आपको जो आइडियाज हैं इनको सिंपलर फॉर्म में प्रेजेंट कर दूँ। तो आप देख रहे हैं कि इसमें बहुत सारे फेजेस नजर आ रहे हैं, या इसमें बहुत सारी एक्टिविटीज नजर आ रही हैं। उनको 3 मेजर एरियाज में डिवाइड किया गया है। आइडेंटिफाइंग व्हाट द इशू इज, preparing for the implementation, assessing and preparing the implementation, preparing and implementing the sustainability, and finally assessing the impact। अच्छा, अगर आप इस फ्रेमवर्क को गौर से देखें तो ये उस प्रोसीजर, अप्रोच या आइडिया को फैसिलिटेट करता है कि जो कि हमारे फ्रेमवर्क्स जिस पे प्ले करते हैं, यानी वो देखते हैं कि कंपनीज ओवरऑल प्लानिंग या स्ट्रेटेजी के तौर पर कैसे कर रही हैं, फिर इम्प्लीमेंटेशन में क्या कर रही हैं, उसकी कांस्टेंट मॉनिटरिंग और फीडबैक, और फिर उसके हवाले से मेजरमेंट यानी इम्पैक्ट। तो हमें हर तरह के प्रोसेसेस इसमें मैनेज होते नजर आ रहे हैं। और वंस वी लुक एट दिस फ्रेमवर्क, जाहिर है इस फ्रेमवर्क को कंप्लीटली स्टडी करने के लिए तो शायद हमें पूरा कोर्स या पूरी डिग्री चाहिए। बहुत सारे कंट्रीज में मोस्ट ऑफ सप्लाई चेन सस्टेनेबिलिटी, सप्लाई चेन के हवाले से कोर्सेज या डिग्रीज हो रहे होंगे। तो हमारे यहाँ क्योंकि हम ऐसा सिंपल टॉपिक के तौर पर देख रहे हैं, तो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि इन्हीं एस्पेक्ट्स में से कुछ बातें आपको गाइड कर सकूं, और फिर कुछ कंपनीज की एग्जांपल्स हम इंटीग्रेट कर सकें। मेरा फोकस बेसिकली इसमें एक सिंपल और इजी वे में की एस्पेक्ट्स को आइडेंटिफाई करना है सप्लाई चेन के हवाले से, उनके हवाले से जो रिक्वायरमेंट्स इनको प्लेस करना है, और फिर उस हवाले से जो कुछ इस वक्त हो रहा है उनको चैलेंज के तौर पर, इशू के तौर पर, ट्रेंड के तौर पर, या उसमें से एक्सपेक्टेड बेनिफिट के तौर पर हमने डिस्कस करना है, ताकि हम उसके लिए फ्यूचर के हवाले से कुछ ना कुछ अंडरस्टैंडिंग डेवलप कर सकें। फॉर एग्जाम्पल, वो कह रहा है फ्रॉम सस्टेनेबल डेवलपमेंट टू सप्लाई चेन, सस्टेनेबल सप्लाई चेन्स, यानी हमने जो जनरल आइडिया सस्टेनेबिलिटी गोल्स जो जनरल आइडिया के तौर पर लिए हैं, उनमें से स्पेसिफिकली हमने अपने लिए गोल्स चुनने हैं। किसके लिए? सप्लाई चेन के लिए। तो हम इसको डिस्कस करेंगे। हम देखेंगे सप्लाई चेन से रेलेवेंट सस्टेनेबिलिटी के एरियाज कौन से बनते हैं। सेकंड, अब ऐसा कर रहे होंगे तो हमें एक पूरा गवर्नेंस का मैकेनिज्म चाहिए। आपको याद है हमने ESG फ्रेमवर्क पढ़ा था, तो वहां भी गवर्नेंस का जिक्र है, वो तो डेलिकेट बैलेंस क्रिएट कर सके इकोनॉमिक गेन्स के साथ साथ सस्टेनेबिलिटी गेन्स या गोल्स को भी। तो हम देख रहे हैं फ्रॉम गवर्नेंस सप्लाई चेन, फ्रॉम कंप्लायंस टू वॉलंटरी स्टैंडर्ड्स। समझ आ रही है कि इनिशियली लोगों ने इसको एज अ रिएक्टिव ऑप्शन के तौर पर टेक किया, यानी गवर्नमेंट की रेगुलेशंस, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स, उनकी कंप्लायंस करते करते आखिरकार बहुत सारी टॉप नॉच कंपनीज इसको वॉलंटरी कर रही हैं, सोच समझ कर एफर्ट कर रही हैं और उसमें इंप्रूवमेंट्स ला रही हैं। नाउ दैट्स व्हाई सप्लाई चेन के अंदर बहुत सारे स्टैंडर्ड्स इमर्ज हो रहे हैं, और उनमें कंपनीज बहुत सारा बेनिफिट भी ले रही हैं। इसलिए आप देख रहे हैं कुछ इंटरनेशनल स्टैंडर्ड। मैं जब ये मॉड्यूल डिजाइन कर रहा था, मेरे जहन में आइडिया था कि हमें कुछ इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स पे बात करनी चाहिए। तो हम सप्लाई चेन के हवाले से जनरल डिस्कशन करते करते नेक्स्ट मॉड्यूल में कुछ इंटरनेशनल एनवायरमेंटल स्टैंडर्ड्स जनरली, और फिर सप्लाई चेन के जो स्टैंडर्ड्स हैं उन पर एक मॉड्यूल करेंगे। फिर नेक्स्ट मॉड्यूल कुछ स्टैंडर्ड्स का जिक्र भी करेंगे। एक्सपेक्टेड रिक्वायरमेंट्स जनरेट करते हैं इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स और कंपनीज,
हम उस हवाले से एक क्विक ब्रीफ सेशन करेंगे जिसके अंदर हम देखेंगे इस वक्त एनवायरमेंटल स्टैंडर्ड्स क्या है, उनको कौन सी एजेंसीज प्रोड्यूस कर रही हैं, उनका इम्पैक्ट कहाँ कहाँ और कैसे है, क्या वो इंडस्ट्री स्पेसिफिक है, इंडस्ट्रीज के लिए हैं, तो हम उस हवाले से एक डिस्कशन करेंगे। एक टॉपिक ऐसा है जो कि रेलेवेंट बनता है, यानी हमारे लिए इम्पोर्टेंट है इसी फ्रेमवर्क में रहते हुए, वो ये है कि अगर कंपनीज अपनी सप्लाई चेन को सस्टेनेबल सप्लाई चेन में कन्वर्ट करते हैं तो क्या इससे उनको दूसरी कंपनीज के मुकाबले एडवांटेज मिलेगा, विच इज कॉल्ड कंपेटिटिव एडवांटेज। तो कंपेटिटिव एडवांटेज के लिवर यानी टूल के तौर पर सस्टेनेबल सप्लाई चेन को हम डिस्कस कर रहे होंगे। दिस इज फॉर मी इज एन इम्पॉर्टेंट टॉपिक, क्योंकि हम वेज ढूंढ रहे हैं कि सप्लाई चेन मैनेजमेंट को इस तरीके से करें कि वो फिर कंपनीज के लिए कैसे एडवांटेज हो सके। फाइनली बट नॉट द लीस्ट, मोस्ट इंपॉर्टेंट फोकल पॉइंट इस सारे फ्रेमवर्क में नजर आ रहा है, हाउ टू इंटीग्रेट सस्टेनेबिलिटी इनटू सप्लाई चेन। ये सप्लाई चेन की जो एक्टिविटीज हैं उनके अंदर सस्टेनेबिलिटी को कैसे इंटीग्रेट किया जाए, जोड़ा जाए, इंटरकनेक्ट किया जाए, यानी सस्टेनेबिलिटी के गोल्स को कैसे लिंक अप किया जाए सप्लाई चेन के इसके साथ। ये हमारा टारगेट या हमारा मेन फोकस है इस पूरे प्रोसेस के अंदर। बाकी तमाम चीजें उसके लिए बिल्डअप है या फिर उसके कॉन्सिक्वेंसेस है या उसकी फैसिलिटेशन है। जैसे आ गया वो जिसका हमने बार बार जिक्र किया है, स्टेक होल्डर रिलेशनशिप, यानी हमें ऐसा करने के लिए, इंटीग्रेट करने के लिए सप्लाई चेन के अंदर बहुत सारे अदर स्टेक होल्डर्स को भी प्रिपेयर या उनका कोऑर्डिनेट करना होगा। यानी हम खाली स्टॉक होल्डर्स की प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करने में नहीं लगे रहेंगे, बल्कि बाकी स्टेक होल्डर्स को भी टेकअप कर लेंगे। तो हम फिर स्टेक होल्डर रिलेशनशिप के हवाले से डिस्कशन कर रहे होंगे। जाहिर है हम बहुत सारी चीजें इसके अंदर नहीं कंप्लीट कर सकेंगे, बट किसी हद तक इसके अंदर चीजें हो रही होंगी। अम, अच्छी ट्राई है, लेकिन मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि ये जो आपने ग्राफ बनाए हैं इसको ना बनाए तो बेहतर है, क्योंकि मैंने फिर ये लेक्चर्स आप देख रहे हैं कि यूट्यूब लेक्चर्स बनाए हुए अपलोड किए हुए हैं, और इसमें आप जो है वो फिर एक बैड फीलिंग आएगी, लोग देखेंगे कि यार ये क्या चीज़ बनाई है। बेहतर ये है कि इसको रिमूव कर दें, और जो कंटेंट की क्वालिटी है इसको खराब ना करें। नाउ फिर अ क्वेश्चन है जो कि हमें नजर आ रहा है कि विद अ शिफ्ट टू ब्रॉडर पर्सपेक्टिव हम आहिस्ता आहिस्ता एक ग्रेटर और बिगर पर्सपेक्टिव की तरफ जा रहे हैं, विच इज ब्रिंगिंग इनटू द सस्टेनेबिलिटी गोल्स। खास तौर पर यूएनडीपी के जो 17 गोल्स हैं उनको हमने किस तरह ऑर्गेनाइजेशन के साथ इंटीग्रेट करना है। तो फिर एक सवाल आ रहा है कि कॉरपोरेट्स, ऑर्गेनाइजेशंस अपने सोशल और एनवायरमेंटल चैलेंजेस को क्या इंटीग्रेट कर सकेंगी अपने सप्लाई चेन एक्टिविटी के गोल्स के साथ, विच आर रिलेटेड टू प्रोक्योरमेंट, डिस्ट्रीब्यूशन, प्लानिंग ऑफ गुड्स, मैनेजिंग ऑफ रिसोर्सेज, प्रोडक्ट डेवलपमेंट, डिलीवरी, शिपमेंट। हमने लास्ट टाइम केसेस पढ़े थे जिसके अंदर बहुत सारी कंपनीज जिनका ताल्लुक ही शिपमेंट और ट्रांसपोर्टेशन से था, जैसे कि DHL, TCS, यूपीएस, वो तो ऑटोमेटिकली रेलेवेंट ऑर्गेनाइजेशंस लग रही हैं, बिकॉज सप्लाई चेन के अंदर उनकी जो एक्टिविटीज हैं उनका डायरेक्ट इम्पैक्ट आ रहा है एनवायरनमेंट के ऊपर। फॉर एग्जांपल जब उनकी डिस्ट्रीब्यूशन, डिलीवरी कार्ड्स या कार्गो व्हीकल्स जब रोड पे ट्रेवल करती हैं तो चांसेस दैट दे emit कार्बन, वो कार्बन उमिट कर रही होती हैं। तो इस लिहाज से वो डायरेक्ट कंसर्न्स लगती हैं। इसलिए हमें नजर आएगा, कंफर्म बात होगी कि सस्टेनेबिलिटी का टॉपिक सप्लाई चेन से बहुत ही क्लोजली जुड़ा हुआ है। मसलन जब भी हम डिलीवरी कर रहे होंगे और रिसोर्सेज की यूटिलाइजेशन कर रहे होंगे,
इस लिहाज से हमें बहुत सारे प्लेसेस के ऊपर सस्टेनेबिलिटी कंसर्न्स नजर आ रहे होंगे। ऐसे मौके पर मैन्युफैक्चरिंग के दौरान या फिर शिपमेंट कोड्स के दौरान या फिर कंज्यूमर के हवाले से बहुत सारे राइट्स उनकी वॉयलेशन के हवाले से कंसर्न नजर आ रही होंगी। फाइनली जो हमारे लिए ज़्यादा कंसर्न है, इन तमाम एक्टिविटीज़ में पोल्यूशन, क्लाइमेट चेंज और इकोसिस्टम और बायोडाइवर्सिटी की डिस्ट्रक्शन के हवाले से इश्यूज भी नजर आ रहे होंगे ऑन एंड ऑन। तो इस लिहाज से हम देख रहे हैं कि हम जिस एरिया को डिस्कस कर रहे हैं वो बहुत ही रेलेवेंट एरिया बनता है सस्टेनेबिलिटी के हवाले से। और जो भी खास तौर पर मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न्स हैं या डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर्स हैं, sorry for slight disruption. You know that we are in the peak hours of the admission process, so I think simultaneously managing some admissions for different programs is ongoing. But to build up this momentum for this particular ड्यूल जो कि हम पढ़ रहे हैं और हम उसकी इम्पोर्टेंस के हवाले से वाई सप्लाई चेन पे ज़्यादा फोकस है, तो ये बात एकेडमिक्स के लोग ही नहीं कर रहे, बल्कि जो प्रैक्टिकल वर्ल्ड के जो लोग हैं, की स्टेक होल्डर्स हैं, स्पेशली सीईओज, वो भी इस हवाले से अ, बातचीत कर रहे हैं। ये वीडियो एक छोटा सा क्लिप तो आपके सामने है, देख रहे हैं कि इट्स टॉक्स अबाउट सीईओज ऑफ कंज्यूमर रिटेल प्रोडक्ट्स इंडस्ट्री के जो सीईओज हैं, वो सिस्टम सप्लाई चेन के हवाले से जो कंसर्न है उसके ऊपर एक डॉक्यूमेंट्री या एक वीडियो डेवलप की गई है। यूजफुल वीडियो है, इसमें आपको टॉप नॉच कंपनीज के सीईओज भी नजर आएंगे। तो चैलेंजेस के हवाले से डिस्कशन कर रहे होंगे, ट्रेंड्स या ब्रेक थ्रूज के हवाले से बात कर रहे होंगे। तो एक अच्छी वीडियो, अच्छा रिसोर्स है तो ये बात कम्युनिकेट करता है कि जो टॉप नॉच कंपनीज के सीईओज हैं वो कंसर्न्ड हैं इस हवाले से कि वो जो अपनी सप्लाई चेन है उसके अंदर एनवायरमेंटल एस्पेक्ट्स को, स्पेशली सस्टेनेबिलिटी के एस्पेक्ट्स को मैनेज कर सकें। नाउ अगर आप सप्लाई चेन के प्रोसेस को थोड़ा सा समझें, तो हम देख रहे हैं कि उसके अंदर रॉ मटेरियल सोर्सिंग है, फिर मैन्युफैक्चरिंग है, फिर पैकेजिंग है, कोर्स वेयर हाउसिंग है और मूवमेंट ऑफ गुड्स है, शिपमेंट ऑफ गुड्स, ट्रांसपोर्टेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन है, फिर रिटेलिंग और फिर कंजम्पशन ऑफ द गुड्स है। इन तमाम एरियाज के अंदर हम कोशिश कर रहे हैं कि जो सस्टेनेबिलिटी के टारगेट्स हैं उनको इंटीग्रेट किया जा सके। इस लिहाज से एक डिलिबरेट एफर्ट है कि जब हम रॉ मटेरियल सोर्स कर रहे हो तो हम इन्वायरमेंटल इश्यूज को सामने रखें और उनको मिनिमाइज कर सकें। और इसी तरह मैन्युफैक्चरिंग के दौरान कोशिश करें हम कि हम क्लीन एंड टाइडी इन्वायरमेंट के एस्पेक्ट्स को सामने रखें और खास तौर पर हार्मफुल गैसेस वो ना कर रहे हो, टॉक्सिक वेस्ट ना डाल रहे हो। तो इस तरह के इश्यूज को अपने सामने रखें। जब हम पैकेजिंग और वेयरहाउसिंग कर रहे हैं तो रिसोर्सेज के हवाले से चीज़ों को उसी तरीके से मैनेज कर रहे हो।
जब मूवमेंट ऑफ शिपमेंट ऑफ गुड्स कर रहे हो, इन केस जब हम अपनी व्हीकल्स के ऊपर प्रोडक्ट्स को सेंड कर रहे हो या हम मटेरियल को शिप कर रहे हैं फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, तो हम कोशिश करें कि कम से कम कार्बन अमिट कर रहे हो। इसी तरह हम जब रिटेल और कंजम्पशन ऑफ गुड्स कर रहे हो, तो रिटेलर्स और अपने कंज्यूमर्स को अवेयर करें कि वो ऐसे प्रोडक्ट एंड कैमरा सर्विसेज मैं की घर में अपलोड हवाले से। जैसे सस्टेनेबिलिटी के हवाले से जो ट्रेंड्स है या जो न्यूनेस इनोवेशन हो रही है उसको टेकअप कर सकें, तो हम एससीएम के अंदर कंटिन्यूसली सस्टेनेबिलिटी की इंटीग्रेशन को मैनेज कर सकते हैं या करना चाहिए। ये मॉड्यूल इस चीज पे फोकस कर रहा है। इस लिहाज से बहुत सारी कंपनी शायद सारी प्रोसेसेस के अंदर सस्टेनेबिलिटी को अचीव ना कर सकें, बहुत सारे गैप्स छुट जाएं। इस लिहाज से अ, पहला टारगेट या पहला फोकस तो ये है कि माइंडसेट को चेंज किया है, थिंकिंग डेवलप की जाए सस्टेनेबिलिटी को सप्लाई चेन के साथ इंटीग्रेट करने के हवाले से, और फिर जहां जहां पॉसिबल हो, जिन जिन एक्टिविटीज में पॉसिबल हो, वहां वहां हमें सस्टेनेबिलिटी की एक्टिविटीज को या सस्टेनेबिलिटी के गोल्स को इंटीग्रेट किया जा सके। फॉर एग्जांपल, आप जब प्रोडक्ट डिजाइन कर रहे हो तो इस बात का खास ध्यान कि वो कैसा डिजाइन हो जो कि एनवायरमेंटल फ्रेंडली हो और सेफर प्रोडक्ट बना रहे हो, एनवायरमेंटली सेफर हो, इवन कंज्यूमर के लिए भी सेफ हो। बहुत सारी कंपनीज जो हैं वो इस लिहाज से जब अपनी प्रोडक्ट की डिजाइनिंग करती हैं उस बात का खास ख्याल रखती हैं कि वो डिसॉल्व हो सके सॉइल के अंदर या फिर वो रिसाइकल हो सके। तो आपने देखा होगा उसके प्रोडक्ट के नीचे भी लिखा होता है रिसाइकेबल प्रोडक्ट। अच्छा, फिर जब आप बाय प्रोडक्ट, जो कि मोस्ट ऑफ द केसेस इन सम इंडस्ट्रीज और एलिमेंट्स विच माइट नॉट बी सुटेबल फॉर द इन्वायरमेंट, यानी वो पोल्यूशन का बाइस बनते हैं, तो उस हवाले से आप उन बाय प्रोडक्ट्स की सेफ रिमूवल या उनकी रीशेपिंग या रिसाइकलिंग के हवाले से काम कर सकते हैं। फिर हम ऐसे प्रोडक्ट बनाने की ओर फोकस करें जो कि लाइफ लॉन्ग रह सकें, यानी उनकी जो वेयर एंड टेयर है वो कम से कम हो, विच इज enhancing their usability for longer term। या फिर जब प्रोडक्ट खत्म हो रहा हो तो सेफली खत्म हो सके, यानी उसकी एंड ऑफ लाइफ आ रही हो तो वो एक सेफ तरीके से फिनिश हो सके, मोस्ट लाइकली वो रीयूज हो सके, रीमॉडलिंग या फिर रिसाइकल हो सके। और अगर वो प्रोडक्ट खत्म हो रहा है तो कम से कम एनवायरनमेंट पे डैमेज कॉज कर रहा हो, यानी उसकी जो रिकवरी का प्रोसेस है वो भी इस तरीके से हो सके। बहुत सारे लोगों ने इस पे बहुत डिटेल से बात की है। इनफैक्ट many places I found bundle of contents related to every each step of it है, क्योंकि हमारा इस वक्त शायद कंसर्न नहीं है। तो फाइनली हम अपनी आज के टॉपिक को इस बात पे कंक्लूड करते हैं कि स्टार्टिंग पॉइंट इज द थिंकिंग एंड री थिंकिंग ऑफ एस्पेक्ट्स। तो हम जरा उस हवाले से देखते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन क्या कर सकती हैं इस हवाले से।
So you think, see, companies may opt many options, and this model is used in many ways in other aspects of businesses. वहाँ भी यूज हो सकता है। ये है कि ऑर्गेनाइजेशन एक इश्यू को देखकर किस किस्म की स्ट्रेटेजी अडॉप्ट कर सकती है। तो हम देख रहे हैं कि एक तरफ रिएक्टिव है और एक तरफ दूसरे एक्सेस पे प्रोएक्टिव है। इन एक तरफ मजबूरी के तहत कर रही है, उस पर प्रेशर है, लोग उसको पुश कर रहे हैं, गवर्नमेंट लॉज ला रही हैं। हम देख रहे हैं कि रिएक्टिव और डिफेंसिव ऑप्शंस हैं। एक तरफ अकोमोडेटिव यानी एडजस्टमेंट कर रही है और दूसरी तरफ प्रोएक्टिव है। इस लिहाज से जो सस्टेनेबल सप्लाई चेन की स्ट्रेटेजी बनती है वो होनी चाहिए प्रोएक्टिव। इस पर बहुत सारी डिबेट होने वाली है, यानी हमने ये देखना है कि हमने पहले थिंकिंग क्या डेवलप करनी है। वो मॉडल भी ये कहता है, ये प्लान फॉर दी सस्टेनेबल सप्लाई चेन है। तो उसका पहला फेज ये है कि आप अपनी ओवरऑल स्ट्रेटेजी मेकिंग में और थिंकिंग में फैसला कर लें कि आपने सस्टेनेबिलिटी के गोल्स को कैसे टेकअप करना है। तो इट कॉल्स फॉर अ प्रोएक्टिव स्ट्रेटेजी, यानी एक प्रोएक्टिव स्ट्रेटेजी की तरफ ऑर्गेनाइजेशन को मूव करना चाहिए। जैसे कि एंग्रो कर रहे हैं वॉलंटरली, पहले से सोच रहे हैं, अपने प्रोजेक्ट इनिशिएट कर रहे हैं, उनके लिए बजटिंग कर रहे हैं वेल बिफोर टाइम, उनके चैलेंजेस को और उनके इश्यूज को पहले से प्लान कर रहा है। बहुत सारी कंपनीज अभी शायद रिएक्टिव नेचर की हैं, इन्वायरमेंटल इशू जब राइज करते हैं तो टैकल करने की कोशिश करती हैं, कुछ स्टेज में थोड़ा सा आगे बढ़ गई हैं, कुछ इश्यूज को मैनेज कर पा रही हैं, कुछ प्लान कर पा रही हैं, कुछ अभी भी ऐसे हैं जिनमें एडजस्टमेंट की जरूरत है। तो दे आर राइट इन दी मिडल समवेयर, यानी वो डिफेंसिव अकोमोडेटिव स्ट्रेटेजी के करीब हैं, ऑप्शंस के करीब। कुछ ऑर्गेनाइजेशंस जो है वो डेफिनेटली प्रोएक्टिव स्ट्रेटेजी की तरफ शिफ्ट कर गई हैं। उन्होंने प्लान्ड एफर्ट करना शुरू कर दिए वॉलंटरी, ताकि वो सप्लाई चेन की एस्पेक्ट्स को सस्टेनेबिलिटी के साथ इंटीग्रेट कर सकें। थिंक दैट्स इट फॉर टुडे। आई बी रिसीविंग लॉट ऑफ कॉल्स, लॉट ऑफ कैंडिडेट्स स्टिल वेटिंग फॉर मी, क्योंकि एडमिशन के हवाले से कर रहे हैं, बीच में इंटरप्शंस भी आ रही हैं, कॉल्स भी आ रही हैं। तो आई विल स्टॉप इट हियर, यहाँ रुक जाता हूँ, और कल जब वापस आऊँगा तो फिर कुछ और एस्पेक्ट्स ऑफ दी सस्टेनेबिलिटी इन दी सप्लाई चेन इस पर बात कर रहे होंगे, और कुछ और टॉपिक्स को आगे बढ़ाएंगे। खासतौर पर देखना चाहिए एक सस्टेनेबल सप्लाई चेन किसी भी बिजनेस के लिए फ्यूचर में कैसे एडवांटेज दे सकती है, और उसमें किस एस्पेक्ट पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए। शायद हमें कुछ स्ट्रेटेजी मेकिंग के हवाले से की एस्पेक्ट्स को रिकॉल करना पड़े या उनके हवाले से बात करनी पड़े। जैसे कि हमें कुछ स्ट्रेटेजी और कंपैरेटिव एडवांटेज के मॉडल्स को पहले देखना पड़ेगा, फिर इसके साथ सप्लाई चेन को जोड़ना पड़ेगा। मैं कोशिश कर रहा हूँ इस मॉडल में ज़्यादा से ज़्यादा सीधी और आसान बात करूँ, ताकि हम इसको आसान वर्ड से तैयार कर। See you inshallah in tomorrow's